કચ્છના લખપતમાં ન્યુમોનિયા તાવે હાહાકાર મચાવ્યો છે। છેલ્લા 4 દિવસમાં ન્યુમોનિયા તાવને કારણે 12 લોકોના મોત થવાનો દાવો કોંગ્રેસના એક સભ્યે કર્યો છે અને ન્યુમોનિયાના તાવને કારણે 12 લોકોના મોત થયા બાદ પણ આરોગ્ય તંત્ર ઊંઘતું હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે। લખપત, ભારવાડ, વાલાવરી, લખાપર, મોરગડી, માળીએ જણાવ્યું છે કે જિલ્લા પંચાયતના પાનદ્રો બેઠકના સદસ્ય મીનાબાદ જાડેજાએ કોંગ્રેસ પ્રમુખને પત્ર લખી પરિસ્થિતિ અંગેની જાણ કરી છે। કચ્છના લખપતમાં ન્યુમોનિયા તાવે હાહાકાર મચાવ્યો છે। છેલ્લા 4 દિવસમાં ન્યુમોનિયા તાવને કારણે 12 લોકોના મોત થયા હોવા બાદ કોંગ્રેસના એક સભ્યે દાવો કર્યો છે કે ન્યુમોનિયા તાવને કારણે 12 લોકોના મોત બાદ પણ આરોગ્ય તંત્ર ઊંઘતું હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે। લખપત, ભારવાડ, વાલાવરી, લખાપર, મોરગર, માળીએ જણાવ્યું છે કે જિલ્લા પંચાયત પાનદ્રો બેઠકના સદસ્ય મીનાબાદ જાડેજાએ કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખને પત્ર લખી જાણ કરી કે વહીવટી તંત્રે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। મૃત લખપત તાલુકાના ભેખરા ગામે છેલ્લા 4 દિવસમાં ભેદી રોગને કારણે 5 લોકોના મોત નિપજતા જાટ સમાજ સહિત સમગ્ર તાલુકામાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે। તાવને કારણે આ દર્દીઓના મોત થયા હોવાની ચર્ચા છે। 2 એમ્બ્યુલન્સ સાથે આરોગ્ય વિભાગની ટીમ પણ વધુ તપાસ માટે નાના સરહદી ગામમાં પહોંચી હતી। લખતર તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ સદસ્ય હુસૈન રાયમાએ જણાવ્યું છે કે તાવના દર્દીઓને પહેલા વર્માનગરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા। તેના દર્દીઓને દયાપર CHCમાં લઈ જવાયા હતા અને ત્યારબાદ ભુજ જનરલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। ત્યાંથી એક દર્દીને અમદાવાદ પણ સારવાર માટે લઈ જવાયો હતો। કોઈ પણ જગ્યાએ તાવનો ઇલાજ ન થતા દર્દીઓના મોત થયા હતા। જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય મોહમ્મદ ઝંગ ઝટ્ટને જણાવ્યું કે એવું લાગે છે કે ડોક્ટરો રોગનું સચોટ નિદાન કરી શક્યા નથી। સવારે ભેખડ ગામની અડીને આવેલા સાનુદ્રા ગામમાં 12 વર્ષના અદમ ઝકીર હુસૈન જતનનું પણ મોત થયું હતું। તેઓ અદમ ઝાટના દાદા છે। ઝાટ સમુદાયના પીઢ નેતા છે। લોકોના મન અને મોઢામાં એક જ વાત છે કે આ તો કેવો તાવ છે જેની સારવાર ભુજ અમદાવાદ સુધી થઈ નથી। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ રોગને કારણે મૃત્યુ પામેલા દર્દીઓને તાવ કે શરદી, ઉધરસ, ન્યુમોનિયાની સાથે યુવાન દર્દીઓને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘટી ગઈ છે, જેના કારણે તેઓને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી છે અને ફેફસા સહિત અન્ય નુકસાનકારક કારણે દર્દીઓના મોત થયા છે અને લીવર દર્દી ઝાટ અબ્દુલ્લા સિદ્દીકી મૃત્યુ પામ્યા અને મોર ગઠબંધનના મુકીમ હિયાત ઝટ્ટ 48 દિવસના તાવ પછી મૃત્યુ પામ્યા છે। સમગ્ર સોસાયટીમાં તાવ જેવા રોગને કારણે 8 લોકોના મોત થયા છે। દર્દીઓને કયા પ્રકારનો તાવ હતો તેની માહિતી તાલુકાના આરોગ્ય વિભાગ આપી શક્યું નથી। આરોગ્ય વિભાગ હજુ સુધી ન્યુમોનિયાને કારણે થયેલ મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી શક્યું નથી અને આરોગ્ય વિભાગનું કહેવું છે કે ગાંધીનગરથી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ પણ હકીકત બહાર આવી શકે તેમ છે। મૃત્યુ ન્યુમોનિયાને કારણે થયા છે કે અન્ય કોઈ કારણસર હાલ આરોગ્ય વિભાગની ટીમો પણ ગામમાં તપાસ કરી રહી છે। बुखार के जो केसेस अभी सामने आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो इफेक्टेड एरियाज हैं जिसमें खास करके भेखड़ा गांव है, लाखापर गांव है, सांधरो वांड है, भारा वांड है, वहाँ सभी जगह 22 जितनी आरोग्य की टीम काम कर रही हैं। ओपीडी में लोगों को व्यवस्थित चेकअप हो सके इसके लिए CHC मंगवाना और CHC दयापर में प्रतिनियुक्ति पे डॉक्टर की निमणूक करी गई है। साथ साथ स्टेट की रैपिड रिस्पांस टीम और राजकोट PDU मेडिकल कॉलेज की रैपिड रिस्पांस टीम भी लखपत तालुका पहुंच रही हैं। सभी जो अफेक्टेड एरियाज हैं, जो उनके आसपास रहने वाले परिवारजन हैं, उनके H1N1 स्वाइन फ्लू, क्रिमियन कॉन्गो फीवर, डेंगू, मलेरिया वगैरह के भी सैंपल लिए गए हैं जिससे कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट की जा सके। प्राइमरी देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा यानी निमोनाइटिस की असर लग रही है और कंटेमिनेशन हो या कम्युनिकेबल हो ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है। तो स्टेट के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में है। मैं PC गढ़वी, कच्छ जिला कांग्रेस शाही प्रवक्ता। मेरे लखपत तहसील में कच्छ जिला में लास्ट में 5 से 7 दिनों में 12 युवानों की मृत्यु हो गई है और वो सब युवान एक ही मुस्लिम ज्ञाति के भी हैं और वो गरीब लोग कोई सारवार नहीं ले सकते हैं। न्यूमोनिया जैसी बीमारी वहाँ आई है और वो युवान कोई डिस्ट्रिक्ट की जिला मथक तक पहुँच भी नहीं सकते हैं और 12 आदमी की मृत्यु होने के बाद भी आज तक गवर्नमेंट की कोई सुविधाएं लखपत में कोई टीम पहुंची नहीं है और वो कैसे मृत्यु हो रहा है, कैसी बीमारी है, उसकी कोई सर्वे नहीं की गई है और 12 लोग जिसमें बेखड़ा गांव के 4 लोग युवान एक ही गांव के वो देहांत हो गए हैं।
तो मेरी सब लोगों से ये विनती है आपके माध्यम से कि इमीडिएटली लखपत तालुके में गवर्नमेंट की सहायता पूरी की जाए और हर हॉस्पिटलों में डॉक्टर रखे जाए और इस तहसील में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो मृत्यु होने की संभावना है वो बचाने के लिए, उसको त्वरित रोकने के लिए गवर्नमेंट की पूरी टीमें वहां जानी चाहिए, तो ही वहां ये हादसा कम हो सकता है। नमस्कार, मैं हुसैन रहमान, सामाजिक कार्यकर लखपत तहसील। कच्छ जिले के लखपत तहसील के बेखड़ा गांव में बारिश होने के बाद पिछले 4 दिन में 3 से 7 तारीख तक एक गांव में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 लड़के जिनकी उम्र 18 से 20 साल थी, जिन्होंने दया पर दवा लेने के बाद भुज के जनरल हॉस्पिटल, के हॉस्पिटल और अहमदाबाद तक ट्रीटमेंट ली, लेकिन वो लोग बच नहीं पाए। उसके बाद उनका एक मामा था जो हार्ट अटैक की वजह से एक्सपायर हो गया। परसों रात एक 6-7 साल की लड़की इसी बेखड़ा गांव में बुखार की वजह से मृत्यु हो गई है। बेखड़ा गांव की आबादी 700 से 800 लोगों की आबादी है, जो लोग पशुधन पर निर्भर हैं। तो वहाँ बारिश के बाद 3 तारीख का पहला मृत्यु हुआ। कल 7 तारीख तक एक ही गांव में 5-5 लोग मर गए। बेखड़ा के बाजू के गांव सांद्रोवाड़ में कल परसों एक 11-12 साल का लड़का, वो भी बुखार आने के बाद उसका भी मृत्यु हो गया। मोरगरवान गांव का एक आदमी जिसकी एज 45 साल की थी, वो भी कल बुखार की वजह से कल दयापुर CHC में आने के बाद मृत्यु हो गया। इसी तरह मेड़ी गांव का एक 30 साल का, लखपत तहसील के मेड़ी गांव का एक 30 साल का युवा जो ट्रीटमेंट के लिए सारवार के लिए राजकोट गया था, लेकिन उसका भी मृत्यु हो गया। लखपत के बाजू में आए हुए अबडासा तहसील के वालावारीवान और बारावाड़ में भी 3 से 4 लोगों के मृत्यु हो गए। पिछले 4-5 दिन में इस तहसील और इस एरिया में तकरीबन 10 से 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। कल जिला आरोग्य की टीम आई थी, तो मैं गुजरात सरकार से गुजारिश करता हूं कि ये कोई वायरस है, कोई चांदीपुरा जैसी बीमारी है क्या है, तात्कालिक गुजरात सरकार इन गाँव की मुलाकात ले। मैं बेखड़ा गांव जाने के लिए मिंडियारी फाटक से बेखड़ा जाने के लिए 6 से 7 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता इतना ख़राब है कि 1 घंटा लग जाता है वहाँ पहुँचने में। 6-7 किलोमीटर में इतना ख़राब रास्ता है। उसके साथ साथ बेखड़ा गांव में पिछली लास्ट 22 तारीख को पानी आया था, उसके बाद पानी नहीं आया। लोग बारिश का दूषित पानी तालाब से पी रहे हैं, जिसकी वजह से रोगचाड़ा फट रहा है। क्या हो रहा है, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप इन गांव की मुलाकात लें, जहां पर ये एक गांव में 5-5 लोगों की मृत्यु हो गई है। कल हमने जिला परिषद के सदस्य मीनाबा दिसुबा जडेजा के नाम से राज्यसभा के सांसद और गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सत्यसिंह गोयल साहब, गुजरात राज्य के आरोग्य मंत्री साहब, कच्छ कलेक्टर साहब, कच्छ के DDO साहब, कच्छ के जिला आरोग्य अधिकारी साहब और यहाँ के विधायक को ईमेल के माध्यम से ये पूरी घटना से वाकिफ किया है। मैं फिर से तंत्र से गुजारिश करता हूँ कि आप इन गाँवों की मुलाकात लें, अगर ये कोई वायरस तो नहीं है। उसके साथ साथ दयापुर गांव में हमारा लखपत तहसील का एक सामूहिक आरोग्य केंद्र है, जिसमें 100 गाँव जुड़े हुए हैं और सरकार के नीति नियम के अनुसार किसी भी सामूहिक आरोग्य केंद्र में एक सुप्रिटेंडेंट होना चाहिए और 2 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन हमारा दयापुर सामूहिक केंद्र सिर्फ एक ही डॉक्टर पर चल रहा है। एक दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा रोज बुखार के दर्दी आ रहे हैं और दयापुर सामूहिक आरोग्य केंद्र में ना एक्सरे है, ना कोई रिपोर्ट हो रहा है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप जितना भी हो सके जल्दी दयापुर CHC में दूसरे डॉक्टर भेजें और यहाँ के लोगों की जो परिस्थिति है, लोगों में जो भय का माहौल है, उसके लिए तंत्र जागरूक बने, ऐसी मेरी तंत्र से हाथ जोड़कर विनती है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट जनादेश न्यूज़ कच्छ।